Hi everyone, so I'm Riri and I'm a second year psychology student and this is my friend. Jhalak, and I'm in fashion design. So, welcome to my YouTube channel, and I have created this channel so I can talk about the taboos and stigmas related to mental health and other topics that our generation feels the need to talk about, but they don't actually talk about it. So, एक viewers discretion दे देती हूँ that this I am not a licensed psychologist, so in case this video hurts you or triggers you in some way, or you feel like whatever I'm saying, my opinions, they're not right, then you don't have to listen to my videos. Or maybe listen to them with an open mind. With an open Yeah. mind. Okay, but seriously though, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि something is not right, or you are being triggered by something, or you are relating a little bit too much, then you have to go out and get a professional help from someone who's actually majoring in all of these things. So today we're going to talk about narcissistic personality disorder. Yeah. Yeah. आगे. So today we're going to talk about narcissistic personality disorder. We're not gonna entirely talk about the disorder because obviously I'm in no position to talk about the disorder and diagnose people. Please do not diagnose yourself as well. We're gonna talk about our own personal incidents जो हमें लगा कि this could be someone who's a bit narcissistic. और अगेन फिर से मैं बोल देती हूँ, प्लीज़ अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूँ कुछ बोल के, एंड इफ यू फील लाइक कि हम डायग्नोस मत करो, ये मत करो, मैं नहीं कर रही डायग्नोसिस. हम बस अपने एक्सपीरियंसेस. हाँ, दिस चैनल इज गोना बी 20% बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन रिसर्चर्स and 80% it's gonna be completely on our own subjective experiences and opinions. Okay, so let's start. So, Jhalak, can you tell me something about Narcissism. yeah, if you know, like, what do you know about it? Narcissism, people who usually people जो are very self-centered and yeah, exactly. मतलब बहुत ही ज़्यादा they do not care and they disregard majorly of other people's opinions and feelings. So I made a document about it, थोड़ा सा छोटा सा इस YouTube video के लिए ही. So I'm gonna tell you about the definition of narcissism. Who's a narcissist? So a narcissist is someone who exhibits extreme self-involvement, their disregard for others' need and tendency to prioritize their own interests and desires over those of others. अब ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग वेज में मैनिफेस्ट हो सकती है, दिख सकती हैं कि कैसे एक पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट हो सकता है नहीं हो सकता है. तो अपनी ही खुद की अचीवमेंट को और अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना और दूसरों की वांट्स नीड्स पूरा इग्नोर कर देना, और इवन दे कैन एक्सप्लॉइट रिलेशनशिप्स फॉर देयर ओन पर्सनल गेन एंड एक ग्रैंडियोसिटी का पैटर्न दिखाना जिसमें उन्हें लग रहा है कि वो हर चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. और ये मैं खुद के उससे नहीं बोल रही, आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट एंड आई एम गोना पुट द रिसर्च का लिंक बायो में कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ लगाते हैं बट कहीं ना ढूंढ लेना मिल जाएगा. In the description, guys. In the description. It's the first video. So and they even they engage in arrogant behaviors and they lack empathy for others. मैं रिसर्च कर रही थी जब, तो आई फाउंड कि ये जो नार्सिसिज्म वर्ड है ये एक ग्रीक मैथोलॉजी से कहीं से आया है, जिसमें होता क्या है कि एक बंदा होता है जिसका नाम होता है नार्सिसस. तो वो बंदा सस, नाम में ही सस है. तो एक लड़की होती है एको जो I mean, she approaches Narcissus and for like a romantic relationship, but he rejects her, जिसके वजह से Echo is very heartbroken and she lives all of her life in desolation and feeling sad. तो उसके बाद क्या होता है कि this एक रिजेक्शन की वजह से
अब एक ग्रीक माइथोलॉजी है क्या Okay. मैंने थोड़ी बनाई है मैं तो मैं ओके रिजेक्शन के ऊपर बाद में आएंगे. हाँ रिजेक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक. तो अब एक नेमेसिस है हु इज लाइक द गॉड ऑफ रिवेंज. तो अब Okay. वो क्या करता है कि वो नार्सिसिस्ट को पनिश करता है इस चीज़ के लिए. वो अब उसको एक लेक या पूल ऑफ वाटर के पास बुलाता है जिसमें नार्सिसिस्ट अपने खुद की शक्ल देखता है और फिर उसको अपनी खुद की शक्ल देख के ही खुद से ही प्यार हो जाता है. बट उसको पता नहीं चलता कि वो है. उसको लगता है कि दैट पर्सन इज़ एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन. और फिर उसके बाद जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो जो वो पानी में देखा वो उसकी वो खुद की ही रिफ्लेक्शन है और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि ओ शिट यार अब तो मैं इससे तो मैं यहाँ से मुझे कभी रेसिप्रोकेट होगी ही नहीं फीलिंग देता कोई बंदा ही नहीं है रियल. तो एक तरीके से ये एक उसका कर्स टाइप का हो गया जो उसने एको पे इन्फ्लिक्ट किया था अपनी फीलिंग्स. अब वो पूरी अपनी लाइफ पूरी डिस्पेयर में काटेगा. तो ये यहाँ से ये नार्सिसिज्म आया कि ये दिखाने के लिए कि ऑनेस्टली ये स्टोरी थोड़ी सी बुलशिट सी है बिकॉज यू कैन गो ऑन एंड रिजेक्ट समवन यू डोंट लाइक. बट लेकिन Exactly. इस चीज़ को नार्सिसिज्म But मेरे हिसाब से तो नहीं बोलते. maybe we do not know do we know the background of it कि like क्यों narcissus whatever the name is नार्सिसिस्ट उसने रिजेक्ट क्यों करा एको को. Was it because he was like he thought he had like superiority complex तो उसको लगा that echo is not to my level. एक्चुअली लाइक एक मेटामॉर्फोसिस एक आई थिंक इट्स अ बुक जिसमें ओविड ने ये स्टोरी लिख रखी है. सो आई एम नॉट पूरा एंटायरली श्योर ऑफ द स्टोरी बट जिस रिसर्च में मैंने देखा था उसमें बस इतना ही पार्ट मेंशन था. We are gonna dig deep into it but ठीक है हाँ, देखते हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी देख लेते हैं. तो एनपीडी के बारे में एक लाइन लिख रखी है मैंने जिसमें एनपीडी इज़ यू नो लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इट इज़ कंसिडर्ड अ मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग टू ट्रीट. इसमें ट्रीटमेंट में बेसिकली टॉक थेरेपी इन्वॉल्व होती है, मूड स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बाकी आई एम इन नो प्लेस टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. अब काफ़ी जगह ये भी होता है कि नार्सिसिज्म को हम ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं. बट नार्सिसिज्म इज़ नॉट द सेम एज हैविंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ like strong sense of self. Strong personality as well. हाँ मतलब Like if a person is very loud or very outspoken, so that cannot be considered into narcissistic personality. Like that could be just someone being confident in हाँ. themselves and being कि हाँ मैं तो बोलूँगा तेरा और कोई बोलूँगी. तेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? With a narcissistic person, I cannot say You cannot say. हाँ, वो नार्सिसिस्टिक था या नहीं था. था. में था थी जो भी है. पर हाँ तो what we can say is कि मुझे लगता है कि they might be narcissistic and हाँ मतलब I have observed कि जो लोग होते हैं जो पोटेंशियल नार्सिसिस्ट हो सकते हैं पीपल लाइक देम काफ़ी ज़्यादा इनिशियली एंड उन्हें लगता है कि डैम इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है. दे आर सो सेल्फ लविंग, वी शुड लर्न फ्रॉम देम, दे पुट देम सेल्फ फर्स्ट. कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ प्लीज. मुझे अब तो बताना पड़ेगा. एक छोटा सा इंसिडेंट बता दे. अरे तो आई डोंट मतलब आई फील लाइक कि दे डिसरिगार्ड एक तो बहुत ज़्यादा ऑफ समवन एल्सेस फीलिंग्स. यार कुछ भी जो भी है मुझे होता- बताइए बाद में. जो अरे यार मतलब ठीक है. सपोज ओके इफ यू कम अक्रॉस अ पर्सन एंड वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही लाइक दे डू नॉट वांट टू एडजस्ट एट ऑल. दे थिंक कि मैं जो बोलूँगा या बोलूँगी वही सही होगा and they justify it and sometimes they go beyond limits कि no but my feelings no but my what I'm you're not listening to what I am saying. ठीक है तू बोल दिया okay I don't want to listen to मेरा सुन तू my problems
Yeah. Hmm. Have you ever come across a Don't even ask. It was so recent. It was so recent. हाँ, तो मेरा experience, like, even I'm not sure if that person is a narcissist could or be just potential narcissist a बोलेंगे psychotic हम। person. Oh नहीं, psycho उस चीज में नहीं भाई. There is a thing in psychology ठीक known है। as psychotism, जिसके भी अलग अलग, उसके बारे में भी कभी करेंगे बात. But I think that person was, yeah, could be. Could be. Okay, so there was this incident where we came across this person जहाँ पे our whole friend group felt कि this person is just not it. पहले हमने हमारे खुद के भी biases थे और वो हमने सब हटा के we thought कि okay, let's just try and talk out the things जो भी थी हमारे इस इंसान से आके बात करते हैं. बट वो होता है ना कि सामने वाला पूरा कम्प्लीटली तुम्हें डिसरिगार्ड कर दे और तुम्हारे बारे में पूरा तुम्हारा मोरल डाउन करने को. अब कोई ऐसा बंदा हो जिसका सामने सेल्फ स्टीम इज़ वेरी लो, दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू हैंडल अ पर्सन हु इज नार्सिसिस्ट. ठीक है. और बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई हैव आई सेल्फ स्टीम. मान लेते We हैं. are not doubting on that. हाँ, तो मान लेते हैं. ठीक है. और फिर तो इसलिए आई जस्ट नो कि जो भी नार्सिसिस्ट बंदा आगे तुम पे एलिगेशंस लगा रहा है तो दोज आर नॉट ट्रू. एक एग्जांपल लेते हैं. ये मेरा पर्सनल नहीं, मैंने देखा है किसी और में ऑब्जर्व किया था कि मतलब दे वर लाइक 2 people आई न्यू अबाउट. 2 लोग थे, दोस्त थे. तो एक आई थिंक एक इंसान जो था उसमें शी हैड सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर. डायग्नोस था वो, मैं ऐसे नहीं बोल रही बट हाँ उसका डायग्नोस था. आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज. और दूसरा जो इंसान था, इट वाज सो क्लियर कि दैट पर्सन इज समवन हु इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी कॉन्डेसेंडिंग पर्सन. और उसके बाद होता क्या था कि वो कॉन्टिन्यूसली वो लड़की दूसरे वाले इंसान को बहुत ज़्यादा वो करता था, क्या बोलते हैं उसे, डिसरिगार्ड और बहुत ज़्यादा व्हाट्स दैट वर्ड, ऑप्रेस बोल सकते हैं. हाँ, ऑप्रेस करता था. बहुत क्लियर था. फिर सामने वाले को जब डिसऑर्डर मतलब इफ़ समवन इज डायग्नोस्ड फ्रॉम अ सर्टेन डिसऑर्डर, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि क्लियर होते हैं कि हाँ दिस पर्सन हैज़ a low self-esteem. So it was clear कि that person was letting him or her do that to himself. तो वही चीज़ आ जाती है कि sometimes you are around narcissists. And some of the narcissistic people, they are aware of it. And they are so proud. Exactly. They're so like, They are so I'm a proud narcissist. of it कि हाँ हम तो हैं narcissist, which is not a thing to be proud of. Narcissistic लोग होते हैं and उन्हें पता होता है कि वो narcissist हैं and they are very, some of them are very proud about it कि हाँ हम तो हैं narcissist. क्या कर लोगे? कोई एग्जाम्पल है. I came across this one person and उसको पता था कि वो है and he was proud about it. He was, well now you know that it was a he, but हाँ he was proud about it कि हाँ. And he used to write on social media and like and वो उसे पता, he was so self aware about it. वो पैराग्राफ्स लिखता था about himself being a narcissistic person and how people should not be with him and why he is not, why he doesn't like to be in a relationship because people are not able to fulfill his self needs. And इसे इंटरनेट पे रैंट करता था and it's like बट फिर हम इस चीज़ पे इतनी बुराई कर ली है. बट लेकिन इस चीज़ पे भी आते हैं कि नॉट एवरी पर्सन हु इज अ नार्सिसिस्ट इज अ बैड पर्सन. हाँ, क्योंकि इवन दो मैं भी लाइक आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु आई थिंक आर नार्सिसिस्ट बट एट द सेम टाइम दे आर गुड पीपल. थोड़ा थोड़ा कई ट्रेड्स में देखी जाता है बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि दे आर नॉट someone who would hurt you जानबूझ के. हाँ, someone who would hurt you जानबूझ के, but they are just like that because they have that disorder. हाँ तो exactly, so like looking at them and understanding कि what could be the reason that they are
exhibiting these traits which could come across as narcissistic personality. क्या होती है वो? What do you think? नहीं मतलब मुझे तो पता ही है. हाँ तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या हो सकती वो है ये वो? होती है कि देख, one of the main reason is your genetic composition. If someone who has a diagnosed NPD, उनके बच्चे हो रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि हाँ उनके बच्चों को भी होगा ही NPD. तो ये सबसे मेन आ जाता है. Damn. हाँ, जैसे कि इट्स लाइक वो ना कैंसर वाली चीज़, एस्मा वाली चीज़, कि अगर तुम्हारे Diabetes. पेरेंट्स या फिर किसी को था जेनेटिक में, वो चीज़ आ जाती है जेनेटिक्स में. मेंटल प्रॉब्लम्स भी जेनेटिक्स में आ जाती है. और इसमें काफ़ी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ये सब मैं रिसर्च से बोल रही हूँ, मैं खुद से बना के नहीं बोल रही. I think parenting would पेरेंटिंग, play a ऑब्वियसली lot. पेरेंटिंग, योर प्राइमरी केयर गिवर इज समवन जो तुम्हारा बिल्कुल बचपन से, ज़रूरी नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ही हों. तुम जब सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते थे? कुड बी समवन, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, समवन योर रिलेटिव, मे बी इफ योर पेरेंट्स वर नॉट देयर. बट हाँ, पेरेंट्स का तो होता ही है स्पेशल रोल निगलेक्ट में. अगर ऐसे भी है कि NPD में इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अब्यूज और निगलेक्ट, तो भी डेवलप हो सकता है. बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीम प्रेज बचपन में, बच्चा बहुत ही ज़्यादा कुछ भी छोटी छोटी चीज़ कर रहा है और तुम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उन्हें प्रेज कर रहे हो, तो उस चीज़ से भी आके वो चांसेस हैं कि NPD डेवलप हो सकता है. And okay, बहुत ही But लेकिन- weird question है. But the question is कि okay, ये लड़कों में ज़्यादा होता है या लड़कियों में ज़्यादा होता है? Is there any, what do you think according to you, कि या फिर किसी में भी हो सकता है? हाँ, आई डोंट थिंक सो कि इट्स जेंडर थिंग Uh, ऑनेस्टली. बट अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने रिसर्च करके कहीं नहीं देखा. बट इसे लगता है. हाँ, ये मुझे लगता है कि जैसे कि इतने एजेस से सेंचुरीज निकल गई हैं एंड इंडिया हैज़ बिन अ मेल डोमिनेंट कंट्री, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कि हाँ लड़कों में ज़्यादा- चांसेस ज़्यादा होंगे. लड़कियों में भी होंगे, बट लड़कियों में ना वो इतना शो नहीं होता है. और ये काफ़ी, ये तो है, ये पॉइंट तो है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, वो लड़कियों में थोड़ा लेटर ऑन लाइफ में जाके ही डिस्कवर हो पाती हैं. बिकॉज वी आर नॉट वेरी वोकल अबाउट हर थिंग्स. और बचपन से ही हम लोगों को, अब तो नहीं, खैर हमारी जनरेशन तो बहुत अलग है, बट जो पहले की जनरेशन देखा जाए तो बहुत सप्रेस करके ही रखा जाता था. देयर वाज दिस इंसिडेंट कि मैं इंटर्नशिप पे थी अपनी, तो उन्होंने, मेरी वो साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने बताया था कि, खैर ये तो थोड़ा अलग ही हो जाता है टॉपिक से, बट बता ही देती हूँ कि मतलब वो बता रही थी कि वो जो साइकोलॉजिस्ट थी वो एक ओल्ड वुमेन से बात कर रही थी. तो वो अपना, ओल्ड वुमेन काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स, तो वो अपना रैंट कर रही थी उनसे कि यार मेरी तो सास थी और मेरे को ऐसे ऐसे टॉर्चर करती थी घर पे, मेरे से ये काम कराती थी, और मतलब वो काम जो इजीली भी हो सकते थे, उसका कोई मुश्किल वे ढूंढ के उससे ही करवाना होता था उनकी सास को. और फिर मेरी जो थी टीचर, साइकोलॉजिस्ट होती, उन्होंने काफ़ी सिंपैथाइज वगैरह करा. तो 5 मिनट बाद उनकी खुद की बहू अंदर आई, उन लेडी की, और वो उन्होंने उसकी बहू पे प्रोजेक्ट करा होगा फिर. हाँ, वो उस बहू को, मतलब उनकी बहू ने आके उन्हें बोला कि मम्मी ये काम ऐसे ऐसे कर दूँ मैं. तो उसकी सास ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं कर, जैसे मैंने तेरे को सिखाया था वैसे ही कर, जबकि वो काम वैसे हो सकता है. और वो इसलिए कराया क्योंकि वो अपनी इतना सारा जो लर्निंग्स है, अपनी ईयर्स, जो भी उन्होंने, ऑल द ईयर्स दे हैव लर्न एंड कंडीशन द ब्रेन इन सच अ वे कि अब वो उन्हें करना ही है प्रोजेक्ट. वो हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज उन्हें वो मे बी इंटेंशनली वो चाहती नहीं थी करना, बट अनइंटेंशनली उन्हें, इवन दो शी वाज अवेयर कि हाँ मेरे साथ ही तो हो रखा है, बट देन शी वाज लाइक कि नहीं, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है प्रोजेक्ट. हाँ, मे बी पीपल आर नॉट, बट वही है ना, वो पुरानी ज़माने की थी, तो मेक सेंस कि अब उनको तो जाके बोल नहीं सकते. एंड प्लस उनकी- लाइक लोग जिस तरीके से कंडीशनड होते हैं इनिशियली, अगर आप किसी इंसान को लो विच इज़ अ यंगर इंडिविजुअल,
उसकी मेंटालिटी चेंज करना इज मच मोर इजी एज कम्पेयर टू द पर्सन जो अपने 20s से निकल चुका है. क्योंकि ऑब्वियसली अब बचपन में ये तो बोला भी जाता है ना कि जब हम पैदा ही होते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स जो मतलब जो हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है उस टाइम की न्यूरल डेवलपमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती है. बट ओवर द ईयर्स वो धीरे धीरे करके कम होती रहती है. तभी अगर तुम किसी बच्चे को कुछ लैंग्वेज सिखा दो तो या कुछ भी सिखा रहे हो तो वो काफ़ी जल्दी लर्न कर लेगा एज़ कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल हु इज़ इन देयर लाइक लेट 30s 40s. उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ लाइक वेरी यंग. और क्या रीजंस हो सकते हैं? और रीजंस एनपीडी के एनपीटी के रीजंस वही है यार. एक्चुअली मतलब मेरे को पर एक चीज़ समझ में ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि एक ही चीज़ के डायग्नोसिस इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं. मतलब जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा कि एनपीडी अगर है तो अब्यूज़ से भी हो सकता है बट बहुत ज़्यादा प्यार करने से भी हो सकता है. तो लाइक व्हाट इज What is the right thing to एग्जैक्टली do? क्या व्हाट इज इट कि मतलब सेफ स्पेस क्या है वो सेफ लाइन क्या है कि ये करो तो नहीं होगा. आई फील लाइक मैं तो पागल हो जाऊंगी यार. जैसे मैंने बच्चे कर लिए मैं तो नहीं रेस कर पाऊंगी यार. मैंने कहा यार हर दूसरे चीज़ में अपने को क्वेश्चन करना पड़ेगा. तुम ज़्यादा प्यार नहीं दे सकते, तुम ज़्यादा डांट नहीं सकते, तुम तो व्हाट इज द राइट वे, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू नॉट. नो आइडिया. क्या ही लाइक तो व्हाट यू नो मैटर व्हाट यू डू यू विल एंड अप गिविंग योर चिल्ड्रन चाइल्डहुड ट्रॉमा. एग्जैक्टली भाई. क्योंकि ऑब्वियसली लाइक एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस. और अब ह्यूमंस तो नहीं होते ना परफेक्ट. तभी ये चैनल बनाया मैंने. लाइक जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे जिन इंसानों के साथ जिनको मुझे लगता था कि उनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनको शायद उतना ज़्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू द पीपल. हाँ खैर इन सब चीज़ों में भी वही होता है ना. एक स्पेक्ट्रम ही आ जाता है कि कितना मे बी दे वर नॉट दैट नार्सिसिस्टिक बस थे. तो सुनते नहीं है यार. Have you ever come across a person जो अपनी बात सुनाता है फिर भाग जाता है? यार ये तो मेरी बात मत कर दो यार. But not in that sense. अपनी जो अपने रैंट्स बताता है, अपने रैंट्स बोलता है, सामने वाले की सुनता ही नहीं है भाई. But I'm not a narcissistic person. Even though I do feel like I have some tendencies. But I'm not. सब में तो थोड़ा बहुत ऐसे सब में देखे तो फिर तो सब like में ही हो it's सकता all है. fun and games until it's not. नार्सिसिज्म जब होता है ना तो हमें लगता है वैसे कि सामने से बंदा जो बहुत वो है वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट वेरी सेल्फ इनिशियली यू लाइक देम बट देन तुम्हें पता चलता है कि यार मतलब देन यू गेट अवेयर एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद देम इनिशियली तो तुम्हें लगेगा कि काफ़ी सही है फिर एट द एंड आते आते एंड तुम्हें पता होगा यू वुड बी अवेयर कि हाँ ये बंदा है बट यू वोंट स्पेशली अगर तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बहुत कम है एंड तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को. दैट इज़ लाइक द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एवर. तुम आ जाओ किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ और भाई यू वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट नॉर विल यू बी एबल टू nor would you be able to speak up about it. Because वही चीज़ होती है कि जब तुम लड़ रहे हो तो दे आर लाइक कि हाँ चली जाओ ये वो बट फिर 4 घंटे बाद कॉल आती है कि आई एम सो सॉरी आई डोंट नो हाउ यू टॉलरेट मी आई एम सो सॉरी. yes and कि मैंने ये सब कर दिया. I don't understand how do you put up with me. Exactly. And फिर you're like यार सही कह रहा है बेचारा यार दे देती हूँ सेकंड कह रही है और कह रहा है जो भी है ठीक है. हम नहीं बोल रहे बट हाँ ठीक है. एंड आई थिंक उसके बाद फिर वो देयर इज दिस जो ये होता है ना पुल एंड पुश वाली जो चीज़ होती है इट कीप्स यू देयर एंड ये तो हर रिलेशनशिप में ही होती है. ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया. ये तो थोड़ा अटैचमेंट स्टाइल्स का है. वो हम नेक्स्ट में आएंगे. सारी चीज़ें नेक्स्ट में ही आएंगी. अभी तो ये बस स्टार्ट ही है. खैर और किस बारे में बात कर सकते हैं हमें मतलब वो कि मतलब जो नार्सिसिस्ट जो भी मतलब बंदे हैं नार्सिसिस्ट लोग हैं तो उनका व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें कैसा फील होता होगा अंदर से जो अवेयर नहीं है
नहीं मतलब अवेयर, मतलब ये पॉइंट तो हटा ही दे कि अवेयर है या नहीं, मतलब एक जो है, व्हाट डू यू थिंक दे एक्चुअली फील लाइक? एक वो होता है मुझे तो लगता होगा विक्टिम, इफ वी आर सेइंग कि भाई मतलब अगर किसी इंसान को देखे जो कि अवेयर नहीं है एंड वो कर रहा है डिसरिगार्ड किसी और की फीलिंग्स, उसे तो लग रहा है कि वो ही है विक्टिम, कि भाई उसके सब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं एंड दे एंड अप नॉट लुकिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिंग खुद को एंड दे थिंक कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। बट ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर अ बैड पर्सन। मैं बस ये कह रही हूँ कि लाइक इफ़ यू फील कि तुम्हें कोई उतनी लाइक पीपल आर लीविंग यू या कुछ I think it's time for you to introspect. एग्जैक्टली, अगर तुम्हारा पूरी don't keep blaming others, others yeah. exactly, don't keep blaming others, don't victimize yourself, be like कि हाँ ठीक है, okay what could be, अगर इतने सारे लोग हैं who have given up on me, तो maybe there is something reason about me and maybe I need to fix that instead of like कि सब पागल है कि उसमें ही दिक्कत है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। लुक एट, मैं अपनी बात करूँ अगर, एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मे बी वहाँ पे आई एम नार्सिसिस्टिक, कि मैं कर दूँगी वहाँ पे डिसरिगार्ड शायद दूसरों के ओपिनियंस को, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं तुमसे पहले से करती आ रही हूँ ये चीज़ एंड आई नो मोर ऑफ इट, तो मैं तुम्हारी बात शायद ना सुनूँ। तो आई थिंक कि मे बी अ सेट ऑफ स्किल में वो हो सकता है कि कहीं कि लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में तुम वो पर्सनालिटी शो कर रहे हो और कहीं यू आर नॉट। खैर वो तो इवन आई एम नॉट श्योर कि कहाँ होता है क्या नहीं होता, बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। क्योंकि जैसे वही चीज़ थी अभी जो तू बता रही थी स्टोरी उसके बारे में, जो उस इंसान के बारे में जिसने पैराग्राफ्स लिख रखे थे, तो वो इंसान भी अच्छा इंसान है यार। अच्छा है मे बी, पता नहीं, आई मीन वी लाइक टू थिंक सो कि गुड पर्सन, बट क्योंकि अभी ऐसा कुछ उसने किया नहीं है, बट मुझे लगता है कि ही इज केपेबल ऑफ, ठीक है, नो नॉट हिम, इट्स समवन एल्स, ओके, इसकी मैं बात कर रही हूँ जो ऐसे पैराग्राफ्स लिखता था। एंड मुझे आई डोंट मुझे थोड़ा फेक भी लगता था वो, ऑनेस्टली थोड़ा कि मे बी ही इज नॉट diagnosed with it, but he wants to portray it that way because he loves himself too much, maybe. I mean, हाँ, सेल्फ लव पूरा प्रमोट करती हूँ मैं, बट दिस इज थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक, अब हम सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा इंसानों से हटके पेरेंट्स पे चलते हैं। इंसानों को भी इंसान ही है भाई। आई मीन कि हमारे एज के लोगों से हटके हम पेरेंट्स पे जाते हैं कि लाइक अगर नार्सिसिस्टिक कोई है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, लाइक इफ यू हैव एनी विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट? बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट। मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि होता होगा लोगों को जिनके पेरेंट्स हैं थोड़ा नार्सिसिस्टिक, उनको होता होगा गिल्ट अबाउट things which were not in their control, but फिर उनके पेरेंट्स एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी दूसरों को ही ब्लेम करता रहेगा, which we already talked about, जो हमें लगता है करता होगा शायद। हाँ, बट लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सामने वाले इंसान पे क्या, because that is what this disorder is, they are so self-centered, वो they cannot think beyond themselves। नहीं वो तो ठीक है, बट लेकिन I mean, I don't think so. I've met someone who's like diagnosed with the disorder, but जैसे जिन भी लोगों से I felt like हाँ this could be, but there have been incidents where I felt like यार this person is a good person. हाँ तो वो तो हम बोल ही रहे हैं ना, but कि लेकिन they could be a good person। See,
इंसान तो वैसे भी देयर इज अ स्पेक्ट्रम ना. कोई दूध का धुला नहीं होता, कोई एकदम खराब नहीं होता. इट्स ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे, नॉट द ones that you're thinking about. the other shade of grey. एंड तो उसमें तो ठीक है, कहीं कहीं पे किसी किसी की स्टोरी के लिए मैं हूँ विलन, किसी किसी की स्टोरी के लिए मैं भी होंगी हीरो. Who knows? Honestly, I feel like जैसे अगर तुम्हें if you can't really I mean if you're not open to listening to other people's opinion तो हाँ भाई तो बहुत चांस है होने का डिसऑर्डर. बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड हो जाता है यार. आई फील लाइक कि मतलब तुम कुछ भी नहीं सोच देखने के लिए रेडी नहीं. नॉट इवन जस्ट ओपिनियन, इफ यू कैन नॉट इवन थिंक कि वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. तुम भाई तुम्हारे आंखों के सामने कुछ हो रहा है, यार लाइक मैं तो मुझे नहीं देखना, मुझे जानना ही नहीं. एग्जैक्टली. मुझे आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक कि भाई क्या हो रहा है दूसरे की लाइफ में और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. रिलेट हुआ आपको? मज़ा आया आपको हमारी चपड़ सुनने में? किसी ने सुनी होगी तो यहाँ तक, अगर किसी ने यहाँ तक एक्चुअली में सुन लिया, यहाँ लव यू गाइस. हमारी पहली मैं ही देख रही होंगी यहाँ तक वीडियो बैठ के. नहीं मैं भी देखूंगी. अरे मतलब हाँ हम देख रहे हैं. रेचल देख रही होगी. हाँ रेचल भी देख. रेचल हमारी बहुत अच्छी दोस्त है. अगले नेक्स्ट वीक में वो आएगी, फिर हम आपको उससे इंट्रोडक्शन करेंगे. हाँ ये तो रहेगी यार. But okay, so this was it for today, and if you feel like we are glad, अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा होगा तो we are glad. हाँ क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है और मेरी तो बहुत फट रही थी बनाने से पहले. लाइक 50 बार तो मैंने गिव अप कर दिया था कि भाई मैं नहीं कर रही. दिस इज नॉट माई थिंग, दिस इज ऑनेस्टली नॉट माई थिंग. And yet you passed it with flying colors. Yeah, because I had to. मेरा मिड टर्म है. ये नहीं डालेंगे हम. ये and also follow Riri Cam Catalog. वो हमारा वो है ना Instagram पेज है. वो मैं सब लिंक फॉलो में कर सब लो. डाल दूंगी. and उस पे हम लोग थोड़ी ऐसे बातें शातें करेंगे, मस्ती करेंगे. मेरी एक्स्ट्रा लाइफ भी देखने को मिलेगी हम सबकी वहाँ पे. यस थोड़े चैट्स के स्क्रीनशॉट्स ऐसे एक्सपोज कर देंगे लोगों को. प्लीज फॉलो दैट. Okay, so thank you for being here. थैंक यू. Bye.